Is it slow or okay? 1 minute, sir. I think my headphone is volume is slow. Yeah, please adjust. Okay. Yeah, now it is better. Thank you. All right. Good. Just give me 1 minute. We'll start. All right. So welcome you all. Hope you all are doing great. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Okay. Hello, Dinesh, Sahani. Welcome to the class. Let me rename you so at least. All right. So let me share my screen. So welcome you all in this session with the Palo Alto Firewall, right? So we'll discuss about this particular firewall module, but before I can go and discuss anything, we'll have basic understanding about this Palo Alto firewall because this is the very basic or beginning of the session because we just have to go in deeper side when we start the journey to learn this Palo Alto firewall, right? So ये session हमारा basically it is going to be Hindi kind of the English both mix. So it is very comfortable because I know many people are asking since long, sir. We need to understand in Hindi. So it is going to be in Hindi, okay? अगर किसी को कुछ लैंग्वेज इशू होता है तो जस्ट लेट मी नो सो प्रॉब्ली विल एडजस्ट दैट वन ओके किसी को अगर हिंदी नहीं आती हो इंग्लिश ही आती हो तो बताना सो विल थिंक अबाउट इट कि कैसे उसको एकोमोडेट किया जाएगा राइट. So before I start this session, I would like to understand if anyone have anything to ask with me regarding this course content syllabus, so I can help to give you the idea about that. And definitely I'll start from my side. Or any other questions like career guidance, any confusion about the security platform, future journey, routing switching, SD-WAN, any cloud proxy and all. So you guys feel free to ask first. So सर at least एक्चुअली जैसे मैं न्यू हूँ बिल्कुल, मुझे आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फायरवॉल और द अदर स्टफ रिलेटेड टू सिक्योरिटी. सो हम्म. सर मैं चाहता हूँ कि सर आप स्क्रैच से बिल्कुल बताएं, मतलब इसको ना कि मतलब फ्रॉम द डे बिल्कुल. डे जीरो. हाँ बिल्कुल. सो अभी तो हम डे माइनस में है, जीरो पे तो हम आए नहीं है. जीरो पे हम बेसिक पैरोल डिस्कशन करते हैं. सो वी आर जस्ट बिल्डिंग द बेसिक फाउंडेशन. ओके. ओके सो सर. बिल्कुल. लेट मी म्यूट समवन इज. सो बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे जीरो से. सो पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट में है क्या क्या. ठीक है. देखो, फायरवॉल तो हम बाद में पढ़ेंगे बट हमें पहले कुछ अपना होमवर्क आना चाहिए, मार्केट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, राइट? सो लेट मी जस्ट ओपन माय व्हाइट बोर्ड. सो आप लोग ये समझ में आया कि भाई हम करने क्या वाले हैं और क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और क्या फ्यूचर है आगे चलकर, ठीक है ना? सो ये सारी चीजें आप पहले समझो, फिर तो हम पोलोल्टो या फोर्टिनेट या चेक पॉइंट इन सब के बारे में तो हम सीखना ही सीखना है पूरे क्लासेस में, राइट? सो लेट मी जस्ट ओपन दिस व्हाइट बोर्ड एंड विल स्टार्ट वन बाय वन. Loading. Uh, Sir, can I ask something in the meanwhile? Yes, you can ask. Most welcome. Yes. So yesterday, today, I was in touch with one of the marketing guy from your company, and based on the conversation, he told me that in order to understand Palo Alto Firewall, I must complete CCNP and Core. Is that so? I cannot say it's like 100% true. Okay. In that case, nobody can go and do this security career, right? So the idea is, let me just give you the idea. Like Dinesh, my audio is
audible. Can you adjust your mic because other people able to, guys, you able to hear me, right? Yes, sir. Everyone? Yes, we can hear you. Yeah. Okay. So see, the idea is, right? So we having a three component, right, in available. One is the network engineer job available. Another is security. And now we having the cloud as well, cloud engineer. We might having a different kind of the designation in all three section, but yes, in primarily if you guys talking these three jobs we have in the market, right, in different section for this networking, security and cloud. So what is the prerequisite, okay, for any jobs listed here, right, in any section? Either you want to move your career in the networking engineer, or you want to move your career in the security engineer or in a cloud engineer. There must be some kind of the prerequisite. So what is the prerequisite? So for any job, either of three, if you're planning to go in the either of these three, there is a basic networking requirement, fundamental, right? So what is a basic networking? This is nothing, you should have the CCNA level of the certification or knowledge, गुड नॉलेज. एंड व्हाट इज इट इज गोइंग टू कवर? सो आपको बेसिकली इस सीसीएनए में से टू चीजों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक योर स्विचिंग कॉन्सेप्ट एंड योर राउटिंग कॉन्सेप्ट. एंड in addition of that, you just also have the very good understanding about the network component, network fundamentals. So what is the network fundamentals? So if you go and do this CCNA, so there is a one module, network fundamentals. So in this network fundamentals, you should be aware about what is the router, what is the functionality, what is the switch, what is the hub, what is the server, what is the Wi-Fi, what is the firewalls. So every component of the networking, you should know about that, right? So the networking fundamentals should be very clear. Basic networking concept, that is CCNA level, you should know what is the VLANs, how it is going to be created, what is the access port, what is the trunk port, how the tagging can be happen, how the spanning tree works somewhere. Even you don't know the spanning tree, that is not going to give the more trouble, but at least you should have the VLAN level of the understanding. In addition of that, you should have the basic routing understanding, matlab ki static route, how it is going to be configured, right? You should having the good understanding about the OSPF. You should having the good understanding about the EIGRP. If I'm talking, this is CCNA level, not the NP level, not the I level, because these are the very advanced topics. And if you go for the CCNP in core NRC and the IE, you just have to go like the next level of the understanding. Even you want to start your journey in the network engineer, you have to start with a CCNA. Without CCNA, you cannot step in as a network engineer, right? Even you want to go in the security engineer, you should must know at least CCNA level of the knowledge. You should must know. If you don't have the CCNA level of the knowledge, I would not suggest to go and start like learning the firewalls. This is my recommendation. Never ever go and start journey with the firewalls. Why it is important? Because in next generation firewall, which we are going to cover, right, in upcoming classes, they know about the VLANs. They know about the routings, right? In routings, you can configure the static route. You can configure the RIP. You can configure the OSPF. Here RIP also I missed that. It can be configure EIGRP, not all the firewall, but some firewall configure. So just leave it for time being. They also understand the BGP. It's a very advanced. So you can think about the firewall itself having this kind of the feature available. And being a security engineer, you are configuring the firewall and you don't have this knowledge. So how you can become the complete security engineer? You just always going to be a struggle. You got my point? So आपको हमेशा struggle करना पड़ेगा
कि मैं एक अच्छा इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ, ठीक है. सो दिस इज माय रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर द एवरी इंजीनियर, right? You are planning for any your journey, even the network engineer, security engineer, and even for the cloud engineer as well, you should have the basic networking concept. Do you guys think cloud doesn't require the routing switching? It's not like that. Even cloud itself, they use the concept of the VLANs, they use the concept of the routings, right? They use the concept of the firewalls as well. So everything available in the cloud as well. So if you don't have the basic knowledge of the CCNA and VLAN and all, even you will be not a good cloud engineer. At some of the point you have to learn. So my recommendation, if you want to become an expert engineer in the networking, if you want to become, then you should have to use, right? If you want to become the network engineer, so in that case, you having this kind of track, CCNA, right, plus CCNP. You can go for the CCI, you can go for the CCI, or if you don't want to go CCI, plus here SD-WAN. If you do these three track all together, these all three, CCNA, CCNP, and SD-WAN, you can become the L3 engineer of the network or L4 engineer of the network, right? This is the recommendation for the one of the network engineer profiles. If you do the CCI, definitely you will be the expert of the networking. Nobody is going to deny that, right? So my recommendation, if you're planning for the pure networking engineer, you must complete your CCNN, you must complete your CCNP, और इसके साथ CCI is going to require lot of budget, lot of effort. नहीं करना है कोई बात नहीं, आप SD-WAN कर लो, क्योंकि आज के मार्केट में अगर आप CCNN CCNP के बेसिस पे if you're looking for the job, good package job, not I'm talking about the L1 or entry level jobs, if you're just looking 10 plus job, means 10 plus package job, so you must have to do this SD-WAN solutions. If you're not doing, so somehow your resume is not going to filter for that, right? But if you want to become the security engineer, so you should have the CCNA level of knowledge, not certification, but you should have the CCNA level of knowledge about the routing switching. You should have the any firewall knowledge. Any firewall. If I'm talking about any firewall, that could be your checkpoint firewall, that could be your Palo Alto firewall, that could be your FortiGate firewall, that could be your your ASA firewall, or might be the Sophos firewall, or any other firewall. But these are the leader of the market. These four are the leader. Sophos is not having the much demand, but you should have this kind of the combination. Any of the firewall. If you know CCNA basic understanding plus any of the firewall, you are become the good security engineer. I would suggest you can become the L1 engineer, L2 engineer, in some case L3 engineer as well, right? For these two combination, either of the firewalls, it's depend of your environment. Some company require 2 firewalls, some company require the 3 firewalls. At least they need 1 firewall, because the Palo Alto FortiGate is the very high demand in the market. So if you become the expert of any of these, you will be going to get the very good market view in terms of the job openings. So this is the combination. But in addition of that, we having the proxy as well. So these can be your L1, L2, and L3. But if you know the proxy solution, so what is the proxy solution now? We having a true market cloud-based proxy. So this is known as the cloud proxy. So two are the leader in the market. One is the Zscaler, sorry, plus you having the Prisma Access. Prisma Access, this is the for the Palo Alto. This pen is not. So one is Zscaler and one is the Prisma Access. So if you know either of these, this Zscaler having the almost very high demand, Prisma having the low demand, because Zscaler is a very popular in the market. So if you having the proxy level of knowledge, then you are going to L4 plus, like you can become the designer, you can become the architect, you can become the
very individual kind of the contributor for their company. So this could be the combination for the one of the good security engineer. And this combination, if you have really good, you can withdraw up to 50 plus lakh CTC in the security field easily. And trust me, L3 and L4 engineer are getting that. It's not something I'm saying for the sake of the just for your happiness. No, it's a true statistics available in the market, but not just one firewall. You should have the 2-3 firewall combination with the at least Zscaler or Prisma access level of the expertise. Then only you can get such kind of like jobs in a market, right? So ये सारी चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा. Coming to the cloud, so सर ये cloud प्रिज्मा में क्या आता है, प्रिज्मा वगैरह? Prisma Access is again the cloud proxy. It's again the cloud proxy. जैसे आपका Zscaler का cloud proxy है, ये भी एक cloud proxy solution है. Similar kind of the going to work. मतलब कि आपको cloud में आपको एक तरह से मान के चलो firewall है, आपकी कंपनी का सारा ट्रैफिक cloud में जाएगा और आपको इन हाउस फायरवॉल लगाने की जरूरत नहीं है. दैट इज गोइंग टू फिल्टर ईच एंड एवरीथिंग एंड बेस्ड ऑन द फिल्ट्रेशन जो आपके सिक्योरिटी पॉलिसी वहां पे चेक होगा एंड आपकी जो भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है कंपनी को वहां पे जाके अप्लाई होगा एंड दे विल गोइंग टू ब्लॉक और अलाउ द सेशंस. मतलब जैसे कि सर मैं AWS यूज कर रहा हूँ तो उसी पे पॉलिसी बन जाएंगी मेरी? हाँ, AWS क्लाउड में पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन बट इनका AWS बेस भी क्लाउड हो सकता है और अपना क्लाउड भी हो सकता है. इनका खुद का हाँ, अपना मतलब डेटा सेंटर है, खुद का कोई भी अपना डेटा. क्लाउड, हाँ, कोई भी कोई भी क्लाउड क्लाउड. हो. प्राइवेट क्लाउड बेसिकली ज्यादा होता है. AWS इज पब्लिक क्लाउड, Azure इज अ पब्लिक क्लाउड, बट दे यूज द प्राइवेट क्लाउड्स. ओके ठीक सर. है. सो दिस इज हाउ योर क्लाउड प्रोक्सी सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी कमिंग. अब हम बात करते हैं कि क्लाउड इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं. सी, तो क्लाउड इंजीनियर्स बनने के लिए इसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन है, AWS के, Azure के, GCP के, जो नेटवर्किंग के लिए हैं, कुछ सिक्योरिटी के लिए हैं, कुछ आपके अलग अलग सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हैं. तो अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं. बट आपको अगर नेटवर्किंग में रहना है तो आपको नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन करनी पड़ेंगे. बट इसके अंदर भी आपके पास AWS के भी सर्टिफिकेशन आप किसी एक को कर लो, AWS कर लो या Azure को कर लो, राइट? Let me mute someone. Who is this? Okay, so आप AWS कर लो, Azure कर लो. ट्रस्ट में आप एक कर लेते हो कोई भी सर्टिफिकेशन, दूसरा अपने आप सीख जाओगे आप. ट्रस्ट में, नॉट माय वर्ड. क्योंकि इतनी सिमिलरिटीज है दोनों के अंदर, आपके टर्म्स चेंज हो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू रिमेन सेम. आपको जो AWS में देखने को मिलेगा वही आपको Azure में मिलेगा. बस हो सकता है कि वहां पे VPC बोला जाए और यहाँ पे आपको VNet बोल दिया जाए. दिस इज ओनली गोइंग टू बी मेक डिफरेंसेस, राइट? वहां पे आपको जैसे राउटर को कुछ अलग नाम हो, यहाँ पे राउटिंग का कुछ अलग नाम हो. ग्लोबल सेगमेंट है, वहां पे कुछ अलग राउटिंग का नाम है, आपका UDR बोलते हैं उसको. इस तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं. बाकी जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी चीजें जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ कि क्या क्या थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी आपका है. मैं जस्ट क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिल जाए कि बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है दोनों के अंदर. सो क्लाउड ऑन रैम्प, just give me 1 minute. देखो यहाँ पे देखो. सो ये देखो, ये AWS का है. इसमें भी आपका VPC है, मैं बोल रहा हूँ VPC है, ये आपका गेटवे राउटर्स हैं, ये आपके इंटीग्रेशंस हैं, अंदर इसके सर्वर्स होते हैं. एक VPC के अंदर प्राइवेट और पब्लिक इनकी कनेक्टिविटी होती है. अगर इसी को Azure से करते, देखो यहाँ पे VNet से रिप्लेस कर दिया है. तो कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम. आपके नेमिंग कन्वेंशन में चेंज हो जाएंगे. तो बहुत सिमिलरिटीज है. ट्रस्ट में, अगर आपने AWS कर लिया या Azure कर लिया तो एक सर्टिफिकेशन आप कर लेते हो या एक का नॉलेज ले लेते हो, दूसरा इज गोइंग टू बी लाइक कॉम्प्लीमेंटरी फॉर यू. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली कोरिलेट द थिंग्स और आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बहुत ही आसानी तरीके से. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द क्लाउड जर्नी. सो if your guys are thinking to just go in the cloud, so आप वहां भी जा सकते हो. ठीक है. तो I hope I answer the query. Who was that? I believe Spars. You happy with the answer or anything else? Yeah, sir. Okay, thank you. Now moving as per our concept, right? So देखो, अब हमारे पास क्या है मार्केट के अंदर.
अब अगर मार्केट के अंदर जाते हो, राइट, सो अभी हम बात कर रहे हैं किस लिए, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी इंजीनियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम फायरवॉल पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो फायरवॉल पढ़ के हम क्या करेंगे? So definitely, if you complete the firewall training, right, any firewall, I'm talking right now about the Palo Alto, right, but you could do any training. आप यहाँ पे FortiGate भी कर सकते हो, right, आप यहाँ पे Cisco का ASA भी कर सकते हो, right, या SOFUJ कर सकते हो। तो ये तीनों ही फायरवॉल या चेक पॉइंट है, क्या यहाँ मैं लिख देता हूँ चेक पॉइंट, ये 4 फायरवॉल्स हैं मार्केट में। इन चारों में से 3 बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे आपका Palo Alto। Guys, please mute yourself. It's my request. So at least there is a lot of background noise. Let me mute everyone. आप लोग लगता है कि क्वेश्चन है तो unmute yourself और raise your hand. I'll definitely give the chance to ask the question, right? So बात करते हैं Palo Alto, Fortinet, Cisco, ASA और Checkpoint, right? These are the market leaders, right? Out of these 4 firewalls, let me show you something. Out of these 4 firewalls, even we having the one of the Gartner Magic Report. This is the Gartner Magic Report where they showed आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स है मार्केट में, उसमें से कौन सा बेस्ट है मार्केट लीडर, राइट, हु इज द बेस्ट। सो उनमें से जो बेस्ट है दैट इज अ Palo Alto, Fortinet एंड चेक पॉइंट, बट आउट ऑफ इवन 3 Palo Alto इज अ लीडर, मतलब लीडर्स ऑफ लीडर। तो देखो मार्केट में बहुत प्रोडक्ट हैं, बट some are challengers, some are niche players, some are the visionaries. So you can see आपका Cisco ये challengers, Alibaba Cloud, Microsoft, ये सब firewalls की बात, Huawei, Juniper, Amazon Web Service का भी cloud है, cloud firewall है, H3C भी है, WatchGuard भी है, Sonic Wall भी है, Sophos firewall देखो यहाँ पे है, Fortinet भी क्या है, Force Point है, Carto Network है, so अलग अलग है, Versa Network भी है, ये सब firewall बनाते हैं, but इन सब में लीडर कौन है? ये 3 firewalls हैं। सब लीडर कौन है? Palo Alto। तो ये आपका मेरा रिपोर्ट नहीं है, दिस इज द एक सर्वे एजेंसी है जो ग्लोबली हर एक प्रोडक्ट को रेट करती है, राइट। जैसे आप एग्जामिनेशन में जाते हो, 100 पीपल आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, राइट, बट सब कोई टॉपर तो नहीं बनता है ना, एवरीवन इज नॉट गोइंग टू बिकम अ टॉपर। उसमें से फर्स्ट सेकंड थ्री, 2 ही 3 लोग आते हैं क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट देते हैं क्लासेस में, राइट, अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देते हैं, दैट्स व्हाई दे बिकम द टॉपर। इसी तरीके से इनके पास एक अच्छा विजन है, एक अच्छा मार्केट है, दैट्स व्हाई दे बिकम द लीडर्स इन द मार्केट। अभी अगर आप इंडस्ट्री में दीज 3 फायरवॉल्स को अगर आप करते हो, स्पेशली आई वुड रिकमेंड ऊपर वाले 2 को करते हो, क्योंकि चेक पॉइंट का थोड़ा सा मार्केट कैप कम है, ट्रस्ट मी, इट्स ट्रू। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप लोग आसपास देखोगे कुछ कंपनियां यूज करती हैं, बट दे आर नॉट लाइक द वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब बहुत बंच में ऑर्गेनाइजेशन है जो Palo Alto और Fortinet को यूज करते हैं। तो चेक पॉइंट इज अ गुड प्रोडक्ट, बट still Fortinet and Palo Alto having their high market in the demand. And trust me again, अगर आप Palo Alto firewall को करते हो, राइट, अगर आप Fortinet को करते हो या चेक पॉइंट को करते हो, किसी भी एक फायरवॉल को करते हो, तो लाइक वाइज मैंने मेंशन किया कि आपका जैसे AWS और Azure का आपस में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, सिमिलरिटीज है, ये तीनों का डीएनए सेम है। ट्रस्ट में, ऑल 3 हैविंग द सेम काइंड ऑफ डीएनए, बिकॉज इनके जो फाउंडर्स है ना, दे ऑल आर वर्किंग फॉर द वन कंपनी, इनिशियली दे ऑल फॉर द चेक पॉइंट्स, एंड वहीं से Palo Alto बना, वहीं से Fortinet बना। सो इनका जो तरीका है काम करने का, इनका जो टर्मिनोलॉजीज हैं, दे ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस है कॉन्फ़िगरेशन करने का, थोड़े फीचर इधर उधर कर दिया है, बट कॉन्सेप्ट वाइज इट इज गोइंग टू बी सेम। सो इफ यू आर गोइंग टू डू ईदर ऑफ द फायरवॉल्स इन गुड वे, नॉट कि बस मैंने पढ़ लिया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि आपने अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है सॉल्यूशन को, तो आपके दूसरी फायरवॉल पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज वन थिंग, right? So let me see, someone ping me. Sir, I'm the art graduate, I have done CCNA, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, क्या मैं डायरेक्ट Palo Alto कर सकता हूँ? प्लीज गाइड मी। So Vivo, what's your name? May I know your name please? अपना नाम बता दो, ज्यादा सही रहता मुझे। पहले ही बताया कि CCNA अगर आपने कर रखा है, यू नो द बेसिक नेटवर्किंग, जैसे आपको
VLANs पता है, राउटिंग पता है, आपको स्विचिंग पता है, यू कैन ऑलवेज गो विद द फायरवॉल्स. देयर इज नो लाइक प्री रिक्विजिट का आपको CCNP NRC करना है, CCNP इनकोड करना है. नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, ट्रस्ट में. बिकॉज जो फायरवॉल में प्री रिक्विजिट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या है. जैसे ये फायरवॉल है, राइट. मैं आप लोग लॉग इन करके दिखाता हूँ कि 210. ओके, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है. बहुत ही जीरो से स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है. वे जस्ट टॉकिंग, जस्ट डूइंग द बेसिक डिस्कशन, बट विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आज जस्ट यू थिंक अबाउट द करियर काउंसलिंग काइंड ऑफ सेशन इन द फायरवॉल्स, राइट. क्या आप पहले प्रोडक्ट के बारे में जानो, प्रोडक्ट है क्या, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे. सो थोड़ा एक्चुअली PAN-OS 10 है, तो थोड़ा टाइम लेता है इसको सिंकअप होने में, क्योंकि इमेज इसकी बहुत हैवी होती है. बट नाउ वी आर लॉग इन. सो ये आपका एक्चुअल फायरवॉल है, ठीक है, देख रहे हो आप लोग. दिस इज द एक्चुअल फायरवॉल जिसपे हम पूरी लैब्स करेंगे, पूरी ट्रेनिंग करेंगे, राइट. आगे चलकर मतलब वील अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फीचर्स. तो दिस इज एक्चुअल फायरवॉल. इसके अंदर अगर नेटवर्क टैब में आप लोग जाते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग. तो इसके अंदर देखो ऑलरेडी इस पे बहुत सारी चीज कॉन्फ़िगर्ड है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सप्लेन. बट देखो यहाँ पे आईपी आपको देना है. इस पे देखो आपके लेयर 3 मोड्स में इंटरफेस हैं, लेयर 2 भी है. तो लेयर 3 आईपी समझता है, लेयर 2 क्या समझता है, वीलेन समझता है. बाकी चीज के बारे में बाद में बात करेंगे क्या होता है, ठीक है. तो आपको लेयर 3 आईपी एड्रेसिंग पता होना चाहिए, राइट. आपको वीलेंस के बारे में पता होना चाहिए. और अगर राउटर के अंदर जाते हो आपको, अगर इसके अंदर आप जाओगे तो देखो आपके पास क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं. आपके पास रिप है, रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्टैटिक राउट कैसे होता है, OSPF कैसे होता है, BGP कैसे होता है. तो अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग नहीं पता है, तो हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स. दिस इज माय रिकमेंडेशन. ओके, रेस्ट गाइज यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स तो हैं L1 पे, आप सिर्फ फॉलो ऑल्टो करके जाओगे तो हो सकता है कि जॉब मिल जाए, लेकिन आपको कभी ना कभी आपको बेसिक नेटवर्किंग करना ही पड़ेगा. क्योंकि चलो मान लेते हैं कि समहाउ आपको जॉब मिल जाती है, फॉलो ऑल्टो कोर्स कर लेते हो तो. लेकिन जब आपको ये सेक्शन में आपको बोल दिया जाए स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करो, आपको फंडामेंटल्स नहीं पता है, तो कैसे कर पाओगे आप. यू कैन नॉट डू दैट. इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन, whenever you want to build your career in the security, first you make sure you have in the basic networking concept. Okay, without basic networking concept, never ever go and learn the firewall. Okay, so I hope Vivo 2125 I answer you. Let me know if you have any further question. Galaxy S21, guys, put your name or let me know your name, I can rename you. Okay, so I'm just naming with the Galaxy S21. So he's asking packet analysis में काम आएगा. Definitely we having a feature to do the packet analysis. हम पैकेट कैप्चर करते हैं, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं. तो इट वाज डन इन वेरी डिटेल कि पैकेट कैप्चर कैसे होता है. एक एक चीज पैकेट कैप्चर में हमने करके देखा है. जैसे हमने जब इसकी ट्रबल शूटिंग की क्लासेस करते हैं, तो कैसे पैकेट कैप्चर करते हैं, कैसे पैकेट कैप्चर को हम एनालाइज करते हैं, वी ऑलरेडी नो दीज ऑल स्टेप्स, राइट. सो पैकेट कैप्चर, डीबग लगाना, कैसे हम अपने पैकेट को एनालाइज करते हैं, वो चीजें भी हम कवर करेंगे थ्रू आउट द सेशन. उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, राइट. So I hope you guys understand where stand these three firewall and why we should know Palo Alto और Fortinet और Checkpoint firewall, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है. पहली बात तो ये है, राइट. सर यस 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 वीवो, बताइए. व्हाट्स योर नेम? हेलो, दिनेश सर. ओके दिनेश, टेल मी. सर मेरा कुछ एमए हुआ है और अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो
मुझे डेस्कटॉप सपोर्ट से स्टार्ट करना होगा। नहीं, आप डेस्कटॉप सपोर्ट बेसिक, आपके यहाँ बहुत नॉइज है, आपको मैंने म्यूट करता हूँ पहले, रुक जाओ पहले। आपके यहाँ बहुत नॉइज है दिनेश, सो आई वुड सजेस्ट कि इवन यू डन द CCNA, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेस्कटॉप सपोर्ट से जॉब स्टार्ट करो। देखो, पहली बात, आप फ्रेशर हो, ठीक है ना, तो फ्रेशर के पास कोई चॉइस नहीं होता है। यू कैन स्टार्ट एनी जॉब इन IT फील्ड। अगर डेस्कटॉप का मिल रहा है तो डेस्कटॉप करो, अगर आपको लैपटॉप का मिल रहा है लैपटॉप करो, अगर राउटर मिल रहा है तो राउटर करो, स्विच मिल रहा है स्विच करो, पहले आप उसको स्टार्ट करो। एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो कि अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो कि देखो, लैपटॉप डेस्कटॉप सपोर्ट भी करोगे तो बेसिक चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बट आपको हमेशा आपको वो जॉब खोजना है जो आपके लिए रेलिवेंट है। जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट इज नॉट गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर यू फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इनिशियली हो सकता है कि चलो आपको कुछ डेस्कटॉप का लैन का कुछ आइडिया मिल जाए, बट इन लॉन्ग रन आपको सर्च करना है जॉब IT सपोर्ट, मीन्स की राउटिंग स्विचिंग का जॉब, कि भाई नेटवर्क इंजीनियर का जॉब, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर का जॉब, इस तरह की जॉब्स आपको सर्च करनी है जिससे आपकी प्रॉपर राउटर स्विच पे काम करने का मौका मिले, ताकि आपकी करियर को बूस्ट मिल सके, राइट। सो आपको उस टाइप के जॉब को आपको सर्च करना है, दिस इज माय रिकमेंडेशन। सर पोलो अल्टो बाद में तो करूँगा, पहले जॉब सर्च कर लो, मतलब ले लूँ उसके बाद। देखो, इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहते हो तो इट इज गोइंग टू बूस्ट योर रिज्यूमे, आप कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो, अगर इफ यू फील कि मैं CCNA पे जॉब पा सकता हूँ और मुझे मिल रहा है, तो जस्ट गो विद जॉब, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको अगर जॉब मिल रही है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, यू कैन गो एंड डू योर जॉब्स। बट कई बार क्या होता है कि CCNA बेसिस पे ना थोड़ी जॉब्स की मार्केट में क्या रहता है कि लोग फ्रेशर्स की जॉब बड़े कम निकालते हैं, तो लोग मांगते हैं कि चलो ठीक है, अगर कहीं से अगर इंटरव्यू आ रहा है तो वहां जाके दे सकते हो। लेकिन अगर आपके CV में कहीं पोलो ऑल्टो लिखा है या फोर्टिनेट लिखा है या कुछ और लिखा है, CCNP भी आपने कर रखा, तो इट इज अ हाई चांस कि आपको थोड़ा सा वेटेज ज्यादा मिल जाए वहां पे, क्योंकि CCNA करने वाले मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। ट्रस्ट में, एवरी फ्रेशर जो पास आउट होते हैं, द फर्स्ट स्टेप डिड गो एंड ज्वाइन द CCNA क्लासेस, एंड उसके बाद उनको लगता है कि मेरे को जॉब मिल जाता है। कुछ लोगों को मिलता है, बट मेनी पीपल्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग, उनको नहीं मिल पाता है। दो रीजन होती है, या तो इंटरव्यू में वो बेसिक चीज बता नहीं पाते हैं या समहाउ उनकी CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट दे नीड CCNA एंड CCNP, या CCNA और तो कोई फायरवॉल, या CCNA के साथ कुछ और क्लाउड की सर्टिफिकेशन, इस टाइप के कॉम्बिनेशन मांगते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास बैंडविथ है तो आप फायरवॉल सीख लो, कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई इट, और यू कैन गो इवन द CCNP और अदर सर्टिफिकेशन एज वेल। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको पोलो ऑल्टो ही करना है, राइट। ओके, ऑल राइट, सो मूविंग नेक्स्ट, सो इन नेक्स्ट, इफ यू गाइज हैविंग द प्रोडक्ट एनालिसिस, तो देखो सबसे पहले आप मार्केट में जब जाते हो तो कोई भी मार्केट में जब जाओगे आप, तो क्या होता है, आप एक फोन खरीदने जाते हो मार्केट में, तो सबसे पहले आप फोन के बारे में रिसर्च करते हो। भाई, मैंने एप्पल खरीदना है, एप्पल का मोबाइल खरीदना है, या सैमसंग का खरीदना है, या मुझे कोई नोकिया का खरीदना है, या माइक्रोसॉफ्ट का खरीदना है, कुछ भी कोई मोबाइल, या MI का खरीदना है, Xiaomi खरीदना है, कुछ भी। सो यू डू योर रिसर्च, समझ रहे हो ना, आप रिसर्च करते हो कि भाई मैं क्यों इस प्रोडक्ट को खरीदूं, इस प्रोडक्ट को क्यों मैं खरीदूं, क्या मेरे लिए वर्थ है। हो सकता है कि आपने जो सैमसंग का मोबाइल खरीदने गया और उसमें आपको 60 मेगापिक्सल का कैमरा मिले, और जो आपने MI का खरीदा उसमें भी 60 मेगापिक्सल का कैमरा मिले, और आपको कैमरा ही चाहिए प्राइमरी चीज, जिससे आपकी सेल्फी फोटो अच्छी आ जाए। बट इसकी प्राइस हो सकता है कि 1 लाख हो, और इसकी प्राइस हो सकता है 30,000 हो। तो आपको दिखेगा ना यार कि मैं, या तो आप बहुत ज्यादा ब्रांड लवर हो, तो आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आप जाके यहाँ पे करके आपने इसको दे दिया। बट अगर आप बहुत ज्यादा कॉस्ट मेजरमेंट करते हो अपने नीड के हिसाब से, तो आप अपने रिक्वायरमेंट को समझोगे, यार मुझे तो कैमरा ही फोटो खींचना है ना, both having a 60 megapixel and they both having the same resolution, same quality, so why should I waste my 70K money just for the Samsung, just for the brand? Why cannot buy the 30K mobile which is going to save my money and meet my all purpose? So ये आपके पास एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसा आप सोच सकते हो।
सिमिलर वे कि जब भी कोई मार्केट में फायरवॉल को बेचने आता है, राइट, सो थोड़ा प्री सेल्स इंजीनियर आप लोगों को बनाता हूँ, काम प्री सेल्स इंजीनियर का होता है जो समझाने का होता है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। किसी भी बंदे को अगर कोई भी फायरवॉल के बारे में पूछता है तो यू शुड नो। तो मेजर जो वेंडर्स हैं, मैं चेक पॉइंट को यहाँ पे नहीं ऐड किया हूँ, बट मैं ऐसी वर्बली बता दूंगा चेक पॉइंट में क्या है कैसे है। बट मेजर जो वेंडर है आपके पास, सबसे पहले उनके फीचर्स को कंपेयर किया जाता है, राइट, कि भाई सिस्को है, पोलो अल्टो है, फोर्टिनेट है, ये बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है और चेक पॉइंट भी है फिलहाल। तो उसको मैंने ऐड करना भूल गया सम रीजन, बट मैं ऐड कर दूंगा आगे की स्लाइड में, ठीक है। तो उनके फीचर्स को देखा जाता है कि भाई मेरे पास ये जो फीचर है, जैसे एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। अब देखो पहली बात, इस पे मैं जाऊं एडवांस थ्रेट प्रिवेंशन सिस्टम से, उससे पहले हर किसी के दिमाग में एक आता है कि भाई हम फायरवॉल ही क्यों लगाएं। हमारे पास कंपनी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे कंपनी में राउटर है, हमारे पास स्विच है, हमारे पास सर्वर्स हैं, राइट, हमारे पास WLC है वायरलेस के, हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स हैं, और क्या, और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती हैं हमारे पास, राइट। बट हमें फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात तो ये समझ में आना है नेटवर्क डिवाइस क्या करता है और फायरवॉल क्या करता है। इन दोनों में आप लोगों को पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा, बट आगे हम इसको डीपर स्टेज में समझेंगे कि होता क्या है। रियल टाइम एग्जांपल समझने की कोशिश। तो देखो आप लोग हर कोई ट्रेवल करते हो, राइट, कहीं ना कहीं आप लोग जाते हो सकता है कि आप लोग एयरपोर्ट जाते हो, राइट, आप लोग हो सकता है कि अपने कंपनी के ऑफिस में जाते हो। जैसे मान के चलो कि आपकी कंपनी है ये वाली, जैसे कोई भी, ठीक है, इस कंपनी के अंदर अलग अलग डेस्क बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, इनका वर्क स्टेशन है, मान के चलो ये लोगों का बैठने के लिए वर्क स्टेशन है, ठीक है। एक यहाँ भी डेस्क बना हुआ है, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मान के चलो कि ये सब डेस्क हैं, इस पे बैठते हैं लोग आकर। कंपनी का आपका एक गेट होगा यहाँ पे, ठीक है। इस गेट से आप क्या करते हो, या तो आप एंट्री करते हो या तो आप एग्जिट करते हो, ठीक है। जैसे आप ऑफिस आते हो तो इस गेट से आप अंदर जाओगे या बाहर जाओगे, यही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बट जब आप कंपनी के अंदर आते हो जब भी, राइट, तो जैसे ही आप गेट पे पहुंचते हो तो यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी, ठीक है। आपके पास एक एक्सेस होता है या अपनी आइडेंटिटी शो करता हो सकता है कि यहाँ पे आपका एक मतलब सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड अंकल बैठे हों और बोले कि बॉस अपनी आईडी शो करो, मुझे आईडी कार्ड दिखाओ आप। तो अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको ये बोले कि नहीं आप कंपनी में अलाउ नहीं हो, मतलब आपका एक्सेस कंपनी के अंदर उन्होंने ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, मतलब आपको डिनाई कर दिया, कंपनी में नहीं जा सकते आप, यहीं रुको। अगर आपके पास वैलिड एक्सेस कार्ड है तो हो सकता है कि आपको हो क्या, मतलब आपके पास है तो ये अलाउ ही करेंगे, देयर इज नो पॉइंट कि आपको डिनाई करेंगे। अगर ये गार्ड साहब हुए तो, नहीं हुए तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास डोर पे एक सिक्योरिटी एक्सेस लगाओ, राइट। उस सिक्योरिटी एक्सेस से क्या हो सकता है, इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके कार्ड में एक्सेस हो तो अगर आप पंच करोगे तो डोर खुलेगा, नहीं पंच करेगा तो नहीं खुलेगा, अगर मतलब एक्सेस होगा तो नहीं खुलेगा, तभी अंदर आ सकते हो, वरना आपका गेट ही नहीं खुलेगा तो कैसे अंदर आओगे, आप यहीं पे डिनाइड हो जाओगे, मतलब आपके एक्सेस यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपका होगा तो अंदर जा सकते हो। सो दिस इज नोन एज द फिजिकल सिक्योरिटी, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल सिक्योरिटी, ये भी तो सिक्योरिटी है। तो ये फिजिकल सिक्योरिटी हो गया एक टाइप का, मल्टीपल टाइप के होते हैं। दूसरा फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एंट्री का राइट्स है, आईडी कार्ड भी एक्सेस भी है, बट यहाँ पे एक कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ कंपनी के अंदर, इसके अंदर एक लैपटॉप या कंप्यूटर रखा होगा, राइट। हो सकता है कि हमेशा आपके पास कंपनी में यहाँ पे गार्ड अंकल ना बैठे हों, आपने क्या किया, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा म्यूट कर लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट ना, मतलब जो भी हैं। हो सकता है कि आपके जो कंपनी में यहाँ पे लैपटॉप
या कंप्यूटर जो भी रखा हो, एक बंदा मतलब ऑफिस का एम्प्लॉय है, ही इज गोइंग टू टेक दिस लैपटॉप आउट और ये अपने घर लेके चला गया। कंपनी का एसेट है, इट इज गोइंग टू बी लॉस। इस तरीके से कोई भी लेके चला जाएगा। आप हो सकता है गार्ड यहाँ पर नहीं है, डोर आपने लगा रखा है और यहाँ पे गार्ड नहीं है और उसने बैग में रखा और लेके चला जाए, तो हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड? तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि आपका कोई सेंसर हो उस चीज को अंडरस्टैंड कर ले, या आपके कंपनी के अंदर हर कॉर्नर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हों कि भाई किस बंदे ने किस टाइम पे किस एसेट को उठाया। वो कैप्चर हो जाएगा ना, भाई मैंने यहाँ पे लैपटॉप रखा था तो सीसीटीवी में दिखेगा कि ये XYZ पर्सन ने इस टाइम पे इस लैपटॉप को उठाया। तो दिस इज ऑल्सो सीसीटीवी कैमरा is going to act as a one type of the physical security. It's a physical security क्योंकि आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है that is going to be happen. So इस तरीके की फिजिकल सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। So this is the part of the security. ये भी सिक्योरिटी है but this is the physical security. Now coming to the point, ये तो बात हो गई कि भाई आपके फिजिकल को कैसे आप प्रिवेंट करोगे। गार्ड लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, एक्सेस डोर लगा दिया, बट हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि मेरा एक कंपनी का नेटवर्क है, राइट? ये यूजर बैठा हो यहाँ पे, ठीक है? इस यूजर के मशीन में हो सकता है कि इस यूजर के मशीन में कोई कंपनी के पीपीटी हो या पीडीएफ फाइल हो, राइट? कुछ भी, और कोई भी वर्ड फाइल सेंसिटिव डेटा हो। और ये बंदा क्या करता है कि अपने कंपनी के नेटवर्क से अब इंटरनेट एक्सेस कर रहा होगा। ये समझो कहानी को, आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहा हो, कैसे कर रहा होगा? सीसीटीवी नहीं है, मान के चलो कि अब राउटर हो गया। थिंक अबाउट इट, राउटर, ये राउटर इससे कनेक्टेड है यहाँ से ऐसे। अब ये राउटर यहाँ से कनेक्टेड है और ये जो राउटर है फर्दर इस स्विच से, मान के ये चलो स्विच है, स्विच से कनेक्टेड है, ये स्विच है और स्विच के पीछे बंदा बैठा हुआ है। अब ये बंदा इंटरनेट एक्सेस कर रहा है अपने लैपटॉप पे, ये इसका लैपटॉप है यहाँ पे, और इसके थ्रू ये क्या किया, पीपीटी और पीडीएफ को, सेंसिटिव डेटा को google.com पे जाकर गूगल ड्राइव पे इसने अपलोड कर दिया, गूगल ड्राइव पे या जीमेल पे इसने अपलोड कर दिया। इट कुड बी राइट। अब इसको करने से क्या हुआ? इसको करने से ये हुआ कि आपका कंपनी का एक सेंसिटिव डेटा जो पीपीटी था और पीडीएफ फाइल था या वर्ड फाइल था वो चोरी हो गया, राइट? समवन हैज सेंड द डेटा ऑन द इंटरनेट, आपका डेटा को लीक कर दिया इसने। अब इसको कौन पकड़ेगा? हु इज गोइंग टू कैप्चर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज? यू गाइस गेटिंग मी प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे? फिजिकल के लिए तो आपने सीसीटीवी लगा दिया, तो ऐसे सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए राउटर इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द पीपीटी फाइल, स्विच इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द पीपीटी, पीडीएफ और वर्ड फाइल। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट वन एग्जांपल, बहुत सारे तरीके आगे बताऊंगा। ये सिर्फ आप लोग समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें होती हैं। तो राउटर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, स्विच के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि इसको समझ में आए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सिक्योरिटी का डिवाइस लगाते हो जो इसको अंडरस्टैंड कर सके कि अगर मेरा पीडीएफ गया, पीपीटी गया, वर्ड फाइल गया, और उसको जैसे ही समझ में आया कि ये कंपनी का सेंसिटिव डेटा लीक हो रहा है, उसको ब्लॉक करना, तो वो डिवाइस का एक ही नाम है, उसको हम बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है? तो आपको इस इंटरनेट और आपके पीसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक नया डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको आप बोल सकते हो फायरवॉल। कहीं भी लगा सकते हो, यहां भी लगा लो, या राउटर की जगह डायरेक्ट फायरवॉल लगा लो, या इसके बाद फायरवॉल लगा लो, कहीं भी लगा लो। इट कुड बी योर चॉइस, मैं आगे डिजाइन बताऊंगा कंसिडरेशन। बट फायरवॉल का एक काम होता है कि आपको जैसे ये सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी देने का काम करता था, ऐसे ही इसको हम बोलते हैं, अगर आपको चाहिए लॉजिकल सिक्योरिटी, if you need this logical security then you must integrate the firewalls। अगर आप फायरवॉल नहीं लगाओगे तो आपको लॉजिकल सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है, राइट? सो ये फायरवॉल आपका पोलो अल्टो हो सकता है, आपका ASA हो सकता है, आपका FortiGate हो सकता है,
या आपका चेक पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑल हैविंग द कैपेबिलिटी। ये सारे फायरवॉल आपके नेक्स्ट जेन फायरवॉल बोलते हैं इनको, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट तो मुझे बताओ आप लोग, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक मुझे आपको बताइए, समझ में आ गया कि मैं क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, यस, समझ में आ गया। समझ में आ गया, चलो गुड। सो मूविंग फर्दर, राइट, मूविंग फर्दर कि हमारा जो अब एक टाइप का सिक्योरिटी है पीडीएफ वर्ड एंड दिस पीपीटी, अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि कोई आपके नेटवर्क पे बाहर से कोई हैकर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कि हैकर यहाँ पे बैठा है लैपटॉप लेके, इसको हम बोलते हैं हैकर। हैकर बैठा है और आपके सिस्टम को हैक करना है। तो जैसे ही हैकर की इंफॉर्मेशन फायरवॉल के पास आएगी, फायरवॉल विल चेक कि ये लेजिटिमेट कनेक्शन है या इलेजिटिमेट कनेक्शन है, मतलब कि ऑथराइज कनेक्शन है या अनऑथराइज कनेक्शन है। अगर उसको लगेगा कि ये समथिंग जो बाहर से बंदा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है दैट इज नॉट लेजिटिमेट, उसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा, उसको आने ही नहीं देगा। कोई इंटरनेट से वायरस डाउनलोड करने की कोशिश करेगा, कोई मालवेयर, कोई वॉर्म, किस तरह का वल्नरेबिलिटी, किसी तरह का डॉस अटैक, जो आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ाई करें, अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कोर्स कंटेंट के बारे में, क्योंकि अभी हम आगे भी सेशन करेंगे ऐसे ही जहां पे मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, बट अभी आप लोग समझो। तो वो हर तरह की चीजों को आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो प्रोटेक्शन का तरीका हो गया कि आपको फायरवॉल इसलिए चाहिए कि आपको लॉजिकल सिक्योरिटी, आप बेसिकली क्या करो कि आप किसी तरह का थ्रेट को प्रिवेंट कर सको। जैसे मैं जस्ट दिखा रहा हूं पीपीटी से, थोड़ा सा आप लोग आइडिया मिल जाए कि आप किसी तरह का वायरस को प्रोटेक्ट कर सको, किसी तरह का एंटी स्पाईवेयर को प्रोटेक्ट कर सको, किसी तरह का वल्नरेबिलिटी को, यूआरएल कंट्रोल, डेटा लीक प्रिवेंशन, डॉस अटैक, वाइल्ड फायर, फाइल ब्लॉकिंग, डिक्रिप्शन, ये सारी चीजें अगर करना चाहते हो जो एक क्रस ऑफ सिक्योरिटी है जिसको हम बोलते हैं, इनकी वजह से ही फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनी है। तो ये सारी चीज है, कोर्स करने में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये ऐसे फीचर हैं कि जो आपकी फायरवॉल को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाती हैं। तो अगर आपके फायरवॉल में ये सब फीचर है देन योर फायरवॉल इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, और उससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया फायरवॉल का बेसिक फंडामेंटल। अब हम बात करते हैं कि हम क्या फीचर्स है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का, और क्या क्या हमारे पास उनके वेंडर्स हैं, और उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे, एक पहला है फीचर एडवांस थ्रेट प्रिवेंशन, राइट, प्रोडक्शंस। तो इसमें सिस्को में भी कर सकते हैं, पोलो अल्टो में भी कर सकते हैं, और फोर्टिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों में नाम अलग अलग है। अगर सिस्को में चाहिए तो आपको एक टैलोस थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन टूल होता है। मैं टैलोस इनका क्लाउड बेस एक टूल है, या क्लाउड बेस एक एप्लीकेशन है जिसको आपको फायरवॉल से इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिससे आपका रियल टाइम जो थ्रेट्स होते हैं, कोई वायरस आते हैं, कोई मेलिशियस कंटेंट आता है, तो उसको वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो टैलोस इज द वन ऑफ द सिस्को सॉल्यूशन। सिमिलर पोलो अल्टम इज द वाइल्ड फायर, आपके पास है वाइल्ड फायर सोल्यूशन, कोर्स कंटेंट में भी है। तो वाइल्ड फायर इज गोइंग टू गिव द विजिबिलिटी अबाउट द रियल टाइम आपके जो अटैक्स होते हैं। इसी तरीके से फोर्टिनेट में फोर्टी गार्ड होता है एक, जो मैं आगे बताऊंगा। फोर्टिनेट का हमारा जो कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, सो विल डिस्कस अबाउट दैट कि फोर्टिनेट में क्या क्या कैसे कैसे चीज होती है। तो फोर्टिनेट फोर्टी गार्ड थ्रेट इंटेलिजेंस होता है। एप्लीकेशन विजिबिलिटी सब में है, देखो, मतलब एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, कौन सा एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो ये आपका फेसबुक एप्लीकेशन हो गया, आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो गया, राइट, आपका यूट्यूब एप्लीकेशन हो गया, आपका जीमेल एप्लीकेशन हो गया, राइट, आपका किसी भी तरीके का, जैसे आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, देखो आपको दिखाता हूँ। सो ये सारे एप्लीकेशन को समझता है। एप्लीकेशन कैसे देख सकते हो, आप जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में जाओगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, मतलब ऑलमोस्ट दुनिया भर के। देखो यहाँ पे कितनी सारी, सोशल नेटवर्किंग में चले जाओ, नेटवर्किंग मीडिया में चले जाओ, देखो ये सारी एप्लीकेशन हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन सर्च करता हूँ, फेसबुक सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे फेसबुक का एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फेसबुक वीडियो, फेसबुक वॉइस, ये सारे। यूट्यूब सर्च करोगे तो यूट्यूब मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जितनी भी दुनिया में वेल नोन एप्लीकेशन है, उन सारे एप्लीकेशन को फायरवॉल समझता है, और ऑन बेसिस ऑफ दिस समझदारी ऑफ द फायरवॉल, आपको उसमें उस चीज को अलाउ भी कर सकता है और उसको डिनाई भी कर सकता है। इट्स टोटली कि आप चाहते हो क्या उसके साथ, राइट। सो इट इज कैपेबल टू डू एनीथिंग।
बेसिकली आपका जितनी भी एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग है दैट इज गोइंग टू हैपन इन टर्म ऑफ द सिस्को में भी कर सकते हो, पालो अल्टो में भी कर सकते हो, फोर्टनेट भी कर सकते हो। इंट्रूजन प्रिवेंशन मतलब किसी तरह का कोई भी मलिशियस कंटेंट आता है, ये तीनों कैपेबल हैं। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, आप समझो ये बात को। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहिए, कि मेरे पास अगर थाउजेंड्स फायरवॉल है उनको मैं सेंट्रलाइज मॉनिटर करना चाहता हूं तो कैसे हो सकता है? तो पॉलो अल्टो अगर रहेगा आपके पास तो उसके लिए आपके पास पैनोरमा यूज होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपके पास अगर फोर्टीगेट रहेगा तो आपके पास उसी लिए 40 मैनेजर यूज होता है। लेकिन अगर सिस्को रहेगा तो क्या करोगे? सिस्को ने एक नया टूल लेकर आया अपना, सिस्को सिक्योर एक्स। दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट, ठीक है ना? तो आपके पास सिस्को सिक्योर एक्स आता है जिसके थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ फायरवॉल, 500 ऑफ फायरवॉल आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इवन मोर देन दैट, लाइसेंस पर डिपेंड करता है कितने आपने लाइसेंस ले रखा है। तो आपके पास ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सिंगल पैन ऑफ ग्लास मिल जाएगा जहां से बैठकर चीजों को आप मैनेज कर सकते हो बहुत इजीली। स्केलेबिलिटी, आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास हाई स्केलेबल होता है हर तरीके तीनों के अंदर। इसके पास फोर्टीगेट, वीएम सीरीज, फायरपॉ, थ्रेट डिफेंस सिस्टम होता है। क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस, तीनों ही क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस हैं इनके पास। सिस्को सिक्योरिटी क्लाउड है इसके पास, इसके पास प्रिज्मा एक्सेस है, इसके पास 40 कैश भी है। ये सारे जो मैं बता रहा था प्रॉक्सी सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड प्रॉक्सी सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपका वो भी आ जाता है, सिस्को अम्ब्रेला भी आ जाता है। जो सिस्को क्लाउड प्रॉक्सी सिक्योरिटी सॉल्यूशन है इसमें आपका सिस्को अम्ब्रेला भी आ जाएगा। इसमें भी आपका प्रिज्मा एक्सेस है, इसका 40 कैश भी, ईज ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप देखो यहाँ पे। सिस्को डिफेंस और स्पेशल पैनोरमा है, 40 मैनेजर जैसे आप मैनेज कर सकते हैं उसको। एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिस्को डुओ के साथ इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे गेम चेंज हो रहा है, देख रहे हो? अगर आपको सिस्को का सोल्यूशन लेते हो, अगर आपको एमएफए चाहिए, राइट, तो इट इज हैविंग अ डुओ इंटीग्रेशन। ये डुओ एक इनका एक टूल है, मतलब एक प्रोडक्ट है। बट ऐसा प्रोडक्ट ना पोलो अल्टो के पास है ना फोर्टिनेट के पास है। तो कोई कस्टमर है उसको चाहिए कि नहीं मुझे एमएफए भी चाहिए और मुझे सिंगल प्रोडक्ट में चाहिए, तो अगर आप पोलो अल्टो और फोर्टिनेट लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको उससे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बिकॉज दे हैविंग अ लिमिटेड इंटीग्रेशन, बट इसके फुल इंटीग्रेशन हैं आपके पास, देख रहे हो? इसी तरीके से ईमेल सिक्योरिटी के अंदर आपके पास ईमेल सिक्योरिटी है, क्योंकि इसके पास अलग अलग इसने टूल बना रखा है, इसमें लिमिटेड है, देख रहे हो? क्योंकि दे नॉट डील विद एमएफए और लाइक ईमेल सिक्योरिटी, देखो डीएनएस सिक्योरिटी इसको अम्ब्रेला, बट इनके पास, हमारे पास डीएनएस के लिए अपना कोई टूल नहीं है, लिमिटेड इंटीग्रेशन है। बट इट कैन डू, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत पावरफुल टूल है। कॉस्ट ओनरशिप, इट्स लाइक द फोर्टिनेट सबसे सस्ता है, बाकी सिस्को पोलो अल्टो इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सेम। इस तरह से आप देखो, एंटी फिशिंग, मालवेयर, ईमेल एन्क्रिप्शन, इंटीग्रेशन थ्रेड, इसमें देखो सिस्को में सारे, इसमें सब में लिमिटेड। इसलिए मैं यहाँ पे सिस्को को ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को फीचर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द बेनिफिट्स इन द सिस्को, तो मैंने वो फीचर्स दिखाए यहाँ पे कि ताकि उस वेंडर को पता चल जाए कि सिस्को उसको क्यों लेना चाहिए। जिस टाइम तक मतलब प्री सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, राइट, तो आप उसकी हाईलाइट दिखाओगे। तो मैंने यहाँ पे सिस्को किस लिए दिखा रखा है बहुत सारी चीजें, कि ताकि उस वेंडर को मुझे सिस्को को प्रोडक्ट बेचना है, राइट। इस तरह से आप लोगों को कभी भी किसी को प्रोडक्ट बेचना है तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा चीज बताओ। तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड, अगर मैं बोल रहा हूँ पोलो अल्टो 14 के पास सोल्यूशन नहीं है, बट बिकॉज सिस्को के कुछ अपने जैसे होता है ना अपर हैंड्स हैं, तो वो फीचर मैंने जानबूझ के कंपोज किया इस स्लाइड के अंदर, ताकि मेरा कस्टमर जो है उसको मैं प्रोडक्ट बेच सकूं सिस्को पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको पोलो अल्टो फोर्टनेट कम बेचूं, राइट, ताकि वो अपना हमारा बिजनेस और बढ़ सके, राइट। तो इस ऑल गेम आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या दिखाना चाहते हो, सामने वाला को वही दिखाओगे। ये जब मैनेजमेंट, सिस्को सिक्योर, ईमेल गेटवे, लिमिटेड इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हैं। बट देखो क्लाउड सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे कैश भी सॉल्यूशन सिक्योरिटी, सिस्को क्लाउड जो ऊपर मैं डिस्कस किया, यहाँ प्रिज्मा है, यहाँ 40 कैश भी है। इंटीग्रेशन सबके साथ है, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी इसके पास है, इनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है। तो मल्टी फैक्टर का बता दिया था मैंने आप लोग को। एडप्टिव ऑथेंटिकेशन इसमें भी है, हालांकि इसमें भी है, बट जस्ट मैंने जानबूझ कर दिखाया है कि ये थोड़ा लिमिटेड है, राइट। सो सो द होल स्टोरी इज दैट कि ऐसा कुछ नहीं है। सिस्को, अगर आप इस स्लाइड को देखते हो तो सिस्को कहीं नहीं है इनके सामने, राइट। लेट मी शो यू।
आप देखते हो तो सिस्को इज nowhere because the challengers right is like just behind of the leaders एंड पॉलो ऑल्टो यहाँ पे है। इसके अलावा हमारे पास एक सर्वे है दैट इज eSecurityPlanet.com। इसमें भी देखोगे तो चेक पॉइंट एंड फोर्टिनेट के जो हमारी फीचर्स हैं दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हायर देन सिस्को। सिस्को को देखो गुड है, कहीं पे फेयर है, कहीं पे गुड है, कहीं पे फेयर है, मैनेजमेंट में सपोर्ट में थोड़ा सा ठीक ठाक है, वेरी गुड है, एंड क्लाउड फीचर है। बाकी बाकी चीजें अगर देखते हो आप सो यहाँ पे चेक पॉइंट भी कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, टॉप पे है, बेस्ट है। पॉल ऑल्टो देखो 3 सेक्शन में लीड कर रही है, तो आपका वेरी गुड है या तो गुड है, फेयर कहीं नहीं है। फोर्टिनेट भी देखो हर जगह लीड कर रहा है। So these are the real like having the very major dependency in the market, but Cisco having a low. But एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एज ए प्रीसेल्स इंजीनियर आपको चीजें करनी पड़ती है। बट हमें उतना जाना नहीं है फिलहाल, हमें तो लर्निंग करना है अपने पॉलो ऑल्टो के बारे में। सो वी जस्ट गोइंग टू कवर दैट। अब मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को समझ आया कुछ थोड़ा बहुत कि व्हाई वी शुड यूज द फीचर्स लाइक प्रोडक्ट्स एंड क्या क्या इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आगे इसके बारे में और भी हम चीजें एनालिसिस करेंगे इन टर्म ऑफ द कोर्स कंटेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, लैब प्रोसीजर एंड ऑल। बट किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, आप लोग वी कैन हैव अ डिस्कशन, क्योंकि ऑलमोस्ट वी हैव डन 1 आवर डिस्कशन। बट आप लोग अब बताओ कोई क्वेश्चन है तो आई विल टेक द क्वेश्चंस। I can say 21 people, so no one have question. Yeah, hi sir. I Yeah, have hi. question. Yeah, So yeah. one question is when you are comparing the features, right, in the Mhm. firewall, the same kind of the features I do heard in the SD-WAN. So how do we see as you compare with router with the firewall? How do we see with the SD-WAN? Because nowadays we call SD-WAN also next generation firewall. And that's a really good question, right? So if you guys learning the like any SD-WAN, even the Cisco SD-WAN or Versa SD-WAN, right? So these SD-WAN having the already integrated next generation firewall, right? You can explore about all firewall feature, but still they are not like the native firewall features. They having a feature like you can do the URL filtering, you can do the application, you can do the DNS control, you can do the intrusion prevention detection systems. But some of the feature like decryptions, user ID integration, like I'm just comparing with the Palo Alto firewalls, right? AD integration, decryptions, some kind of the HA kind of the stuffs, that is not possible in the SD-WAN. So they having the next generation firewall feature, you can do most of the things, but you cannot do all of the things, right? So if you want to advance level the like security features, that is not possible in the SD-WANs. If the SD-WAN is going to integrate with any third party vendor or third party tool or some other Cisco product solutions, then it is possible. But pure SD-WAN is not capable to do everything what 40 firewall can do or the Palo can do that. So this is the basic thing we just have to understand. Else nobody is going to buy this coordinator Palo Alto in the market. Everyone just buy the one box and get all security. But yes, they having some kind of limitations. They have to do a lot of overhead work. Likewise, they have to do routing as well. They have to do the policy. They have to do some kind of the load balancing. They have to understand your control connections, IPsec tunnels. So one box cannot do everything, right? So that's why we having the specific, requirement of the firewall. Yes, sir. Yeah. All right. Any other question, guys? Any other questions anyone have, or we are good? सर एक क्वेश्चन है मेरा, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं गौरव। सर ये एसटीपी में हम प्रायोरिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? एसटीपी में प्रायोरिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट, यू आर आस्किंग। सो एसटीपी में प्रायोरिटी मेंटेन करने के लिए मतलब क्या रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा। जैसे 3 स्विच है हमारे पास, तो देखो आप प्रायोरिटी क्या होता है कि देखो बताता हूँ आपको। देखिए एक स्विच आपका रूट बनता है जिसका लो प्रायोरिटी होता है, राइट, रूट स्विच जिसको बोलते हैं, रूट ब्रिज जिसको बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका जिसकी भी प्रायोरिटी हर स्विच का प्रायोरिटी 3 2 6 7 8 ऐसे कुछ होता है, 7 6 8 ऐसे कुछ होता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद है 3 2 7 6 8 होता है, आई थिंक ऐसे कुछ होता है नंबर, राइट। सो बाय डिफॉल्ट होता है प्लस मैक एड्रेस होता है। तो जिसका देखो सबकी प्रायोरिटी तो सेम होती है 3 2 7 6 8, हर स्विच का प्रायोरिटी सेम होता है बाय डिफॉल्ट। बट जिसका लोअर मैक एड्रेस होता है दैट इज गोइंग टू बिकम द रूट ब्रिज, राइट।
तो अगर आप प्रायोरिटी कम कर दोगे किसी का, जैसे 1096 कर दिया इसका, और इसका कर दिया 32768 और इसका भी 32768 प्रायोरिटी कर दिया, तो अब देखो पहले प्रायोरिटी इसकी लोअर है तो मैक एड्रेस बाद में चेक होता है। दिस इज गोइंग टू बिकम द रूट। तो मान के चलो कि पहले ये रूट था, तो जैसे ही आपने प्रायोरिटी चेंज किया तो हो जाएगा। तो प्रायोरिटी कैन बी मैनिपुलेटेड इन द स्विच, बहुत इजीली मैनिपुलेट हो रहा था प्रायोरिटी। सर इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ना? इम्पैक्ट आएगा ना, पूरा टोपोलॉजी चेंज हो जाएगा आपका, ये स्विच रूट रूट ब्रिज बन जाएगा, सारा ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा, इम्पैक्ट आएगा, 100% आएगा। कि टीसीएन चेंज हो जाएगी, टोपोलॉजी नोटिसिएंट, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, यस। तो आपकी पूरी एक ब्रिज अलग हो जाएगा, इसमें बन के तैयार हो जाएगा। नहीं, कुछ मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि जैसे चल रहा है नेटवर्क अभी ना सर, हम्म तो उसमें कुछ वीलैन्स वगैरह नई कॉन्फ़िगर होनी है। तो उसमें क्या होना है कि उनमें प्रायोरिटी कुछ वीलैन पे कुछ 16,000 ले जानी है, कुछ वीलैन पे प्रायोरिटी है नियर अबाउट 8,000, मतलब 2 स्विच में। तो अब जो मेरा एग्जिस्टिंग है उस पे भी फिर वो पूरे को इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, बहुत ही केयरफुली करना होता है, इतना आसान मतलब इसको ब्लाइंडली मत करना, चेंज प्लान करके करना है इसको, ठीक है। हाँ सर, वही देखना पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैव टू आस्क? we'll have the follow up session, we'll do the आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कोर्स कंटेंट एंड द क्या सर्टिफिकेशन करना, अगले सेशन में हम करेंगे, क्योंकि जस्ट वी आर डूइंग स्टेप बाय, थोड़ा आप लोगों को बेसिक बेसिक बताऊंगा तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक बार में सारी चीज मुझे डालने की आदत नहीं है डाउनलोड करने की, तो विल गो बिट एंड पीसेस सो यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर हम बिल्कुल बेसिक से एक नई फायरवॉल को हम लेंगे, उसको हम कैसे बिल्कुल जीरो से कन्फिगर करते हैं, क्या होती है फायरवॉल, कैसे दिखती है फायरवॉल, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और फिर हम डे जीरो की लैब्स करेंगे। जो डे जीरो की हमारी लैब होती है, ये होती है कि हम पॉलो अल्टो फायरवॉल कैसे कन्फिगर करते हैं। So, इस लैब्स को विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको जीयूआई एक्सेस लेंगे, कैसे हम इसका कंसोल एक्सेस लेंगे, कैसे इसका हम रिमोट एक्सेस लेंगे, और वहां से फिर हम धीरे 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 अपने कोर्स कंटेंट की तरफ जाएंगे कि जो हम क्या करने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं, क्या हम ये सब सर्टिफिकेशन होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी हैपन इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक। इसके अलावा एनीवन हैव एनीथिंग टू आस्क, कैन आस्क, दिस इज लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, एल्स वी कैन रैप अप दिस सेशन फॉर टुडे, विल कनेक्ट द नेक्स्ट क्लास। सर क्लास टाइमिंग क्या रहेगा? 8 to 9:30। सर फॉर फ्राइडे यस, Monday to Friday. Monday to Friday is time, but Monday to Friday, but we'll just have 4-day class. इधर Monday to Thursday और एक दिन हम छुट्टी करेंगे। Most probably हम Friday को छुट्टी करेंगे, Monday to Thursday we'll have the class. Okay. हेलो, Yes, ड्यूरेशन yes. क्या रहता है इसका पूरा? It is going to around 2 months. 2 months course. Yes, yes, please. So सर ये पीसी एनएसए होगा या एनएससी होगा? Both, both. Both. Complete. मैं लिख देता हूँ आप लोग को। Okay. EDU 210, EDU 220 और EDU 310. These 3 courses is going to be cover completely. इसमें से कुछ एक ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते ड्यू टू लाइसेंस, राइट। Else most of the things is going to cover. इसके अलावा कुछ फॉलो अप बचता नहीं है। So PCNA, PCNSC both is going to be cover entire module, right? So ये बहुत ही huge and like you can think about कि आपका ग्लोबल प्रोटेक्ट से लेकर डिक्रिप्शन से लेकर आपका पैनोरामा का लेकर IP6 से लेकर यूजर आईडी इंटीग्रेशन, इट्स नॉट लाइक समथिंग थ्योरेटिकल, सब कुछ लैब होगी, राइट। यू विल गेट एवरीथिंग इन द वेरी डिटेल, एचए कॉन्फ़िगरेशन बोथ एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव, ट्रबल शूटिंग की क्लास होगी स्पेशल आपको, जिसमें डिबग एंड पैकेट कैप्चर एवरीथिंग बताया जाएगा, क्या मतलब होता है, एंड बाकी चीजें तो देख ही रहे आपको कोर्स कंटेंट में, जो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या इसमें होगा, ठीक है। बट इट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वे। सर एक मेरा मतलब रनिंग मैं पॉलो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सो उसमें मुझे मतलब एक ऑडिट के पर्पज से एक क्वेश्चन आया था कि वे लोकल नेटवर्क पे डिक्रिप्शन जो होता है वो एनेबल होता है नहीं होता है, या मैं फायरवॉल पे देख सकता हूँ कहीं पे? देखो लोकल नेटवर्क में आपका इंटरनल लोकल नेटवर्क जो होता है उसमें डिक्रिप्शन हम इनेबल नहीं करते हैं। लोकल नेटवर्क में तो लैन टू लैन आप बात कर रहे हो, ठीक है। करेक्ट। हाँ, सो देर इज नेवर एवर डिक्रिप्शन रिक्वायर्ड, राइट, लैन टू लैन। बट कुछ कंपनियां करना चाहती तो कर सकती हैं, इट ऑलवेज एप्लीकेबल लैन टू वैन, इंटरनेट पे जा रहे हो तब चाहिए होता है। बट कई लोग करते भी हैं, सो आप देख सकते हो, आपको
डिक्रिप्शन जब हम करेंगे ना आगे, तो कैसे डिक्रिप्शन पॉलिसी कॉन्फ़िगर होती है, उसके अंदर क्या होता है, you will get that understanding in this section. इस सेक्शन में आपको मिलेगा SSL डिक्रिप्शन, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, आउटबाउंड इनबाउंड डिस्क्रिप्शन कैसे होती है, ये सारी Okay. चीजें हम डिस्कस। एंड सर वन मोर क्वेश्चन था मेरा हम्म कि मेरा IPv4 और IPv6 दोनों ISP से मिला हुआ है, ठीक है, बट मैं लोकल नेटवर्क पे अगर IPv सिस्टम कनेक्ट करता हूँ तो मुझे IPv6 मिल रहा है जो कि मेरा कॉन्फ़िगर्ड है, बट मैं वाइल जीपी के थ्रू अगर कनेक्ट कर रहा हूँ ना ग्लोबल प्रोटोकॉल के थ्रू, तो तब मुझे IPv6 नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये जानना है कि 440 Palo सपोर्ट करता है नहीं करता है। क्या IPv4 IPv6 दोनों सपोर्ट करता है? हाँ, IPv6 फोर तो करता है। हम्म जस्ट मुझे IPv6 का पता करना था कि IPv6 सपोर्ट करता है नहीं करता है। नहीं करता है। आपको iOS कौन सा चल रहा है? वो मॉडल छोड़ दो, मॉडल का कोई मतलब नहीं, iOS बताओ। 10 पॉइंट समथिंग कुछ है सर। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी बंद हाँ। कर दे, मैं दिखा दूंगा आपको आगे कैसे कॉन्फ़िगर होता है जीबी के अंदर, ठीक है? वो भी पूल कैसे बनाते हैं, ओके है ओके। करता है, बिल्कुल करता है। हाँ देखो मॉडल से कोई मतलब नहीं होता है, मॉडल कोई भी हो, iOS अगर उसके अंदर पड़ा हुआ है जो 10 का है, अगर यही 10.0.10 आपने डाल रखा है, अगर आपने करेक्ट करेक्ट। 420 के अंदर, ठीक है, और यही आपने 5200 के अंदर डाल रखा, तो वही तो सेम है ना। तो जो फीचर यहाँ आएगा वो फीचर यहाँ मॉडल से है। मॉडल सिर्फ आपकी थ्रूपुट और बैकप्लेन कैपेसिटी बढ़ जाती है, ओके ओके। बस इतना होता है कि एक आपका पतला पाइप है और एक आपका बहुत मोटा पाइप है। दोनों में पानी ही जाएगा, इसमें पानी जाएगा, इसमें ज्यादा पानी जाएगा, इसमें कम पानी जाएगा, बस इतना डिफरेंस है और क्या करेक्ट करेक्ट। सो सो जैसे ये मुझे यही जानना था, मैं जब भी मतलब VPN के थ्रू कनेक्ट करता हूँ ना तब मुझे IPv6 नहीं मिलता है, IP4 ही मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। व्हेन वी डू दिस ग्लोबल प्रोडक्ट थिंग्स राइट, सो हम्म। विल अंडरस्टैंड राइट कैसे इसको आप ट्रबल शूट कर सकते हो। सो अगर मैं बताना भी चाहूंगा तो भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कोई ग्लोबल बात नहीं, प्रोडक्ट कोई इज बात लाइक वेरी बिग टॉपिक। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे नहीं। आपको इनेबल करना है, तो आपको मिलने लगेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू। All right, so I believe we are good with today. Can I ask some career? Yes, Spars, you can definitely ask. I don't have any objection. Since this is the moderate and the recorded session, I don't think should ask. Consider my job. Okay, so let me stop this recording. Okay.